अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने बेसिक कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स के कुछ एक देखे, डिमांड एंड सप्लाई का लॉ देखा, इन्फ्लेशन, कंसेप्ट ऑफ मनी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज, ये सब हमने देख लिया। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें हम सब इंटरेस्टेड होते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ये शेयर मार्केट क्या होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक आध सेशंस लेंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ एटलीस्ट 2 सेशंस जिसमें हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट एज ए होल पहले कहते ही किसको है? दीज आर प्लेसेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स वुड बी मीटिंग। अब वो किस लिए? टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें कोई कंसिडरेशन भी होगी। सो देयर वुड बी आदान प्रदान ऑफ मनी देयर। ये तोहफा गिफ्ट नहीं किया जा रहा है, सो दैट वुड नॉट बी अ मार्केट। तो 3 नेसेसरी कंपोनेंट्स हो गए किसी भी मार्केट के। बायर्स और सेलर्स एक कंपोनेंट हो गया, फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सचेंज की जा रही हैं, एंड देयर इज सम कंसिडरेशन। ये बायर और सेलर, दिस हैज़ टू बी डिस्टिंक्ट, अपनी ही एक जेब से दूसरी जेब में नहीं डालना है। एंड देयर हैज़ टू बी सम good or some service that is rendered and a consideration that is an economic activity has to take place. ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो we would say it's a market. Now that we understand what's a market, it's not very difficult to understand what would be a financial market. Now, this is a market where financial instruments are being purchased or sold. So good and service की जगह replace किया गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ने। नाउ द ओनली थिंग दैट कंसर्न्स अस वुड बी व्हाट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दैट वी वुड अंडरस्टैंड इन अ मोमेंट। सो फॉर नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल मार्केट्स वुड बी प्लेटफॉर्म्स वेयर exchange of financial instruments take place. And who sells them and who buys them, that also we'll understand. For now, financial institutions, they sell them or they deal with it, and these are where people invest their money. So what is a financial instrument? It's a contract. It's a legally binding agreement between 2 or more parties which represents some asset. Now see, for example, gold is an asset in itself, right? But I can have a paper upon which is written that so and so owes me 10 kgs of gold. Now this certificate, if legally binding, is a financial instrument. कैसे? क्यों? ये गोल्ड तो नहीं है, लेकिन वैल्यू इसकी गोल्ड जैसी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि I own 10 kg gold. They are with someone else. लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रियल गोल्ड तो नहीं है। This would be called a financial instrument. Now, this is an asset. ये एक asset का एग्जाम्पल है, दूसरे पार्टी के लिए लाइबिलिटी है। तो एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है। ऐसे ही डिफरेंट तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वुड बी रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ अंडरलाइंग एसेट और लाइबिलिटी, which means that it has some underlying value or some kind of underlying liability or obligation. Take for example stock market. We would understand stock market काफ़ी डिटेल में। For now, जिसको आप स्टॉक मार्केट जानते हैं, जो न्यूज़ में आता रहता है, ये यहाँ पे स्टॉक्स की बात होती है। You must have heard, आपका कोई cousin, he owns stocks in such a company. Now, what is a stock? It's again a financial instrument that represents ownership in a company. So if your cousin owns stocks of a company, that means he owns a part of that company, and therefore he has the right to share its profits and losses. Say he owns X number of shares in that company. Say he owns 40%. So he would have उसी के हिसाब से share in the profits as well as losses. Now bond is another type of financial instrument, not James Bond. This is another kind of bond.
This is a financial instrument that represents a loan made by some investor to a borrower. Now, this bond would be promising a regular interest payment and repayment of the principal at some later date. आसान भाषा में, I have given you a paper जिस पे लिखा हुआ है I have taken 1 lakh rupees from you and I would, या ये भी नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि I would be returning 1 lakh rupees to you after 5 years and every month I'll be giving you 1000 rupees. And this paper costs you say 1 lakh rupee. तो this is a bond. इसको bond कहेंगे. ऐसे ही एक option होता है. Option is a financial instrument that gives the holder the right to buy or sell an underlying asset at a specified price within a specified time period. आज ही फिक्स होगी रेट, आज ही फिक्स होगी. फ्यूचर में 6 महीने के बाद आई विल बी परचेजिंग, रेट आज फिक्स होगी. इसको भी बाद में देखेंगे. आई एम जस्ट थोड़ा सा सुपरफिशियली आपको तारुफ करा रहा हूँ. वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. ये डिटेल्स हम देखेंगे अलबत्ता. स्टॉक्स वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. Options also we might have a look at. So why do we need financial markets at all, financial instruments at all? Let's understand it with an example of gold. Now, gold, say for example, in a country is not available locally. India is also an example. बहुत ज़्यादा gold हिंदुस्तान से निकलता नहीं है. Now you have to get it from somewhere. Why? Because people consider it to be a safe investment. इसकी वैल्यू है. तो लोग क्या करेंगे? लोग गोल्ड को खरीदने के लिए मार्केट में आएंगे. एंड यू वुड हैव टू द कंट्री जो उसके सेलर्स हैं गोल्ड के, दे वुड बी इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम एल्सवेयर. नाउ व्हेन दे आर इम्पोर्टिंग इट, दे वुड नॉट बी पेइंग रुपीज. दे वुड हैव टू पे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड करेंसी. से फॉर एग्जाम्पल दैट इज डॉलर. Now this leads to loss of valuable foreign exchange because gold was imported. And now consider this second part of it. Gold खरीद के करोगे क्या उसका? ये फर्दर किसी काम नहीं आता, ये पड़ा रहता है. Once it is imported, there is no further earning on it. और कुछ नहीं होगा इसका, बस पड़ा हुआ है. अब अगर हम इसको रिप्लेस कर दे विद से सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड सर्टिफिकेट बॉन्ड, कुछ भी इसका नाम रख दिया फैंसी. एक कागज़ का वर्क है, पेज है, ये गवर्नमेंट ने दिया. क्या दिया? आप जाते हो मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड. ये झुमका नहीं है जो पहनना है, यूज़ करना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको गोल्ड खरीदना था. तो आप क्या करते थे? 100 ग्राम गोल्ड खरीदा या 1 kg गोल्ड खरीदा या 10 kg गोल्ड खरीदा. अब आप गए मार्केट कहीं भी, आपको क्या दिया? आपको उसने पेपर पे लिख के दिया, हाँ आपका 10 kg सोना आपने खरीद लिया है, वो मेरे पास रखा हुआ है. यहाँ पे सेफ भी है, कुछ भी नहीं है. आप जिस वक्त आपको चाहिए होगा दे देंगे. आप बस बोल दीजिएगा एक दिन पहले, विल गिव इट टू यू, नहीं बस रहेगा हमारे पास. अच्छा, ये आपके पहनने के लिए नहीं है तो इट वुडंट क्रिएट अ डिफरेंस फॉर यू. और आपके ऊपर लाइबिलिटी भी नहीं है, चोरी होगा, कुछ होगा, केयर एटसेट्रा, नथिंग. द गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ इट. आपके पास डॉक्यूमेंट पे सॉवरेन के साइन है कि हाँ इसका गोल्ड रखा हुआ है मेरे पास. नाउ दिस सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम. ना इंपोर्ट करना पड़ा, आपका पैसा भी यहीं पे रहा फ्रॉम एन इकोनॉमीज पर्सपेक्टिव, ना फॉरेन एक्सचेंज गया. नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल मार्केट की ट्रांजेक्शन है. और इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि कोई अलग से मार्केट नहीं है कि ये मछली मार्केट है, सब्जी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है. ट्रांजेक्शन है जो उस कंटेक्स्ट में हम जिसकी बात करते हैं. नाउ इस एग्जाम्पल से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि मनी हैज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर. फ्रॉम विच सेक्टर टू विच सेक्टर? आप गोल्ड तभी खरीदते ना जब आपके पास पैसा होता. पैसा होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यू हैव सरप्लस मनी. खाना पीना, रिक्रिएशन, बच्चों की पढ़ाई, ये सारे खर्चे करने के बाद व्हाट इज रिमेनिंग विद यू? सरप्लस, सेविंग, दैट यू गिव टू एन इंस्टीट्यूशन.
व्हाट वुड द इंस्टीट्यूशन डू विद इट? उसको क्या करना है पैसे का? उसको शौक है पैसा रखने का, वो उसको डेफिसिट रिटर्न सेक्टर को देगा। डेफिसिट रिटर्न सेक्टर मतलब जिसको पैसे की ज़रूरत है, वो उसको इन्वेस्ट करेंगे विद इन द कंट्री। अब इन्वेस्ट करेंगे, इकॉनमी बढ़ेगी, दे विल गिव रिटर्न टू द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन रिटर्न का एक हिस्सा रखेगा, बाकी हिस्सा आपको पास कर देगा। सबका फायदा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब खुश। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। सो दिस न्यू वे ऑफ इकोनॉमिक्स, इसने बहुत मदद की कंट्रीज को आगे बढ़ने के, बाय पूलिंग इन रिसोर्सेज फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। अब ये देखो, 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख, इवन 1 रुपी, से फॉर एग्जाम्पल इफ एवरी इंडियन कंट्रीब्यूट्स 1 रुपी, 120 करोड़ रुपए हो गए। ये बहुत रकम होती है। तो ऐसे पूल एंड रिसोर्स करने से बहुत फ़ायदा हो जाता है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प इन कीपिंग मनी विद इन द कंट्री, एंड दिस हेल्प्स गिविंग द सरप्लस सेक्शन a safe place to invest, and all the money circulates within the economy. Now, financial markets would involve 2 kinds of instruments: money market instruments or capital market instruments. These are fancy terms, not much difference. The difference between the two is period of investment, that's all, which is up to 1 year for money market instrument and more than 1 year for capital market instrument. तो यही जो आपने ट्रांजैक्शन की अभी गोल्ड खरीदने की, अगर आप ये ट्रांजैक्शन 6 महीने के लिए करते, ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है ये डॉक्यूमेंट। अब अगर ये 6 साल के लिए, तो ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज ओनली द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स same instrument can be money or capital market instrument depending upon tenure. Now typical money market instruments would be call money market, जिसमें 1 दिन होता है, notice money market, इसमें 2 से 2 हफ्ते, और term money market, ये लगभग 1 साल, 2 हफ्ते से 1 साल तक का इसका चलता है। Now what does that mean? 1 दिन का मतलब विद इन 1 डे रिपेमेंट मांगी जा सकती है कॉल मनी मार्केट की। तो द लेंडर कैन आस्क द बोरोवर, कल पैसा चाहिए तो कल देना है। नोटिस मनी मार्केट में यू हैव टू गिव अ नोटिस ऑफ 2 वीक्स, उतने में फिर उसको देना पड़ेगा, लाइबिलिटी उस पर बनती है 2 हफ्ते में। और टर्म मनी, टर्म आपको बता ही रहा है कि फिक्स होता है, कोई एक टर्म उस पर देना होता है। नाउ अब देखिए, ये कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखे होंगे छोटे मोटे बैंक जहाँ पे कोई ना दाखिल होता है ना कोई वहाँ से निकलता है, और आप सोच रहे होते ये बैंक चलते कैसे हैं, ये क्या काम करते हैं, यहाँ तो ना कोई दाखिल होता है ना कोई वहाँ से निकलता है। कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट से आप समझेंगे कि ये बैंक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और कश्मीरी में जो कहावत है, बाजी काइन शासन लाकट काइन डोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा ना, कन शीशे दवा मकानस, फिर जब उसमें पत्थर वगैरह बिछाते हैं, तो अब तो चलो राफ्ट वगैरह हो गए, कंक्रीटिंग एट्सेट्रा हो गई। पहले जब मकान का कन होता था, उसकी नींव रखी जाती थी, तो उसमें फिर जब वो पत्थर रखते थे तो उसके नीचे एक छोटा छोटा पत्थर, सो दैट वो पत्थर फर्दर हिले ना। तो बाजी काइन शासन लाकट काइन डाक। अब हमारे बच्चे ये देख ही नहीं पाते हैं। खैर, बैंक्स को भी कभी कभार दे फेस अचानक से क्रंच ऑफ फंड्स। बैंक वर्क ही कैसे करता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? सरप्लस सेक्शन से पैसा लिया, दैट मीन्स आपकी सेविंग्स। अब बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, आप बहुत सारे लोग हैं, आपके पास थोड़ी थोड़ी ही सेविंग है, 10,000 20,000, लेकिन यही जब 10,000 लोगों की 10,000 होगी तो ये बहुत अमाउंट बन जाता है। फिर क्या करता है वो, इसको यूज़ करता है डेफिसिट सेक्टर को देकर। डेफिसिट सेक्टर इसको इन्वेस्ट करता है, वहाँ से रिटर्न्स आते हैं, वो बैंक को इंटरेस्ट देता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखता है। तो अब बैंक ने तो पैसा दे रखा है, आपने मांग लिया, बैंक क्या करेगा? बैंक कहाँ से लाएगा? बैंक के पास तो एट ए टाइम नहीं है ना। तो ऐसी क्रंच सिचुएशंस इकॉनमी में आती हैं। कब? दिवाली फॉर एग्जांपल। अब दिवाली पे बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुस्तान में, या मुस्लिम कंट्री में ईद बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत सारा खर्चा।
Hindus in particular, if I'm not mistaken, they buy gold on around Diwali. Now that requires handsome amount of money. पैसा घर पे थोड़ी रखते हैं. कल्पना कहती है ना गजनी में कि पैसा लेकर कौन जाता है पार्टी में. आजकल कैश कौन रखता है. तो वो तो बैंक के पास है पैसा, बैंक ने तो किसी और को दे दिया है. तो क्या होगा अब, क्या करें. अब SBI पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेस, हर एक ATM पे लगा हुआ है, निकाल रहे हैं पैसा. SBI कहाँ से लाएगा इतना पैसा. अब याद करो वो छोटू बैंक जिसको कोई नहीं पूछता. छोटू बैंक किसी दिन का वेट कर रहा होता है. SBI लगाता है कॉल, छोटे पैसा दे. तो कहता है ठीक है सर, 15% इंटरेस्ट लगेगा. कहता क्या करूँ, पैसा चाहिए, पैसा दो. तो वो छोटू बैंक देता है इसको एक दिन के लिए पैसा. सो कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट इज इशूड एट सच a point of time. So usually smaller banks would be giving money to larger banks, which would be needing this money immediately for a few hours only. That's all. Now you can understand ये जो ये call money, notice money, these are used more for interbank transactions. अब इसकी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो हिंदुस्तान में गवर्न करता है माइबार, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, जो इसकी इंटरेस्ट एटसेट्रा को डिटरमिन करता है. इंटरनेशनल लेवल पे जब यही ट्रांजैक्शंस होगी तो लाइबॉर वुड बी लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट. तो ये डिटरमिन करते हैं इंटरेस्ट डिफरेंट इन्हीं ट्रांजैक्शंस पे. अब कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, नाम तो सुना ही होगा. नाउ दीज आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट. कोई भी इनको खरीद सकता है unless and until गवर्नमेंट ही कोई रेस्ट्रिक्शन इस पे लगाए. एंड दिस वुड हेल्प गवर्नमेंट टू रेज मनी एंड फॉर वट एवर रीज़न इट नीड्स डेफिसिट फाइनेंसिंग एट्सेट्रा. मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जैसा हमने पहले देखा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, दैट मीन्स गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो उसकी इनकम से ज़्यादा है. तो जो बचा हुआ, मतलब 120 रुपये खर्चा कर रही है, 100 ही रुपये कमा रही है, 20 रुपये कहाँ से आएगा. दैट इज़ डेफिसिट को फाइनेंस करना. तो उसको करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डॉक्यूमेंट एक निकाल दिया, ट्रेजरी बिल, और आपने उसको ख़रीदा. गवर्नमेंट के पास पैसा आया, आपके पास कागज़ आ गया. तो दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट रेजेस मनी. और मनी सप्लाई तो हम पिछले सेशंस में समझ ही चुके हैं. इकॉनमी में पैसा कम करना चाहती है. अब कागज़ तो कोई ख़रीदेगा नहीं. कागज़ से क्या करोगे, कसाई के पास जाओगे मटन लेने के लिए, सब्ज़ी वाले के पास जाओगे सब्ज़ी लेने के लिए, उसको दोगे ट्रेजरी बिल. खैर, नाउ the returns on treasury bills are not calculated through an interest or percentage basis. इसमें क्या किया जाता है, these are issued at a discounted cost while entire worth is repaid. 1,00,000 रुपए आपको पे किया जाएगा, लेकिन जब आप इसको खरीदेंगे आप उसको 80,000 में खरीदेंगे. So this is how treasury bills work. अब ये फाइनेंशियल मार्केट का, अब ट्रेजरी बिल्स को स्टॉक मार्केट पे अगर चढ़ा दें तो ऐसा हो सकता है क्या? टेक्निकली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अनलेस लॉ प्रिवेंट्स इट. कि मेरे पास एक ट्रेजरी बिल है, आई वांट टू सेल इट, तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, राइट? तो ऐसे हो सकता है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट पे. आई डोंट नो इफ ट्रेजरी बिल्स आर देयर ऑन स्टॉक मार्केट, बट इफ लॉ वुड हैव अलाउड दिस कुड हैव हैपेंड. नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी सुना ही होगा. ये तो इससे तो सब वाकिफ़ ही है. कैसे वाकिफ़ है सब? क्योंकि जो आप बैंक में डिपॉजिट क्रिएट करते हो ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेते हो बैंक से, ये वही है. इसमें जिन बैंक्स को सेंट्रल बैंक अलाउ करता है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे सकती है, वो बैंक्स ये काम कर सकते हैं. एंड थ्रू दिस बैंक्स रेज मनी फॉर देमसेल्व्स. अब इसमें क्या होगा, आप बैंक को पैसा देंगे, वो आपको डिपॉजिट की सर्टिफिकेट देंगे कि 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट हमारे पास है इतने टाइम के लिए. तो ये हो गया कमर्शियल पेपर्स. अब यही काम जब कॉरपोरेट्स या कंपनीज करेंगी तो उसको कमर्शियल पेपर कहेंगे. सेम ऐसा ही काम है. अब एक मसला जो आता है इसी सारे मसले के अंदर, वो ये है कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने बोला कि मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए और यू कैन बाय दिस डॉक्यूमेंट फॉर
say 1 lakh and we would give you 1,20,000 after a particular period of time. 20,000 रुपये का फ़ायदा. जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम, इट कम्स आउट टू बी से 4% पर ईयर का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है एक तरीके का. लेकिन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है 6%. दैट मीन्स टेक्निकली 1,20,000 उस वक्त वो चीज़ नहीं खरीद पाएगा जो इस वक्त आपका 1 लाख रुपए खरीद पा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है. सो मनी इज लूजिंग मोर वैल्यू देन यूर डिपॉजिट इज गेनिंग. तो आपका तो नुकसान हुआ. टेक्निकली गवर्नमेंट आपको कम दे रही है देन इट हैज टेकन बैक फ्रॉम यू. तो ये एक मसला आया इकोनॉमी में. तो फिर क्या हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एन इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड. इन बॉन्ड्स में क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट इज एडेड टू द इंटरेस्ट रेट ताकि आपको पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट मिले. अब आपको अभी क्या हो रहा था, 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, 6% इन्फ्लेशन रेट है, तो -2% आपको मिल रहा है. अब इसको अपोजिट करें, 6% को 4% में ऐड करें, 10%. दिस इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड. अब ये कैसे एडजस्ट होगा वो दैट्स अ टॉपिक फॉर अदर डे. उसमें थोड़ी सी निटी ग्रिटीज हैं कि ऐसे ही नहीं देंगे 10%, तो बहुत हो जाएगा. लेट 90s में ये फेनोमेना हिंदुस्तान में शुरू हुआ. हो क्या रहा था मसला, पीपल वेर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम दीज बॉन्ड्स एट्सेट्रा बिकॉज ऑफ दिस रीजन. दे वेर इन्वेस्टिंग एल्सवेयर. तो फाइनेंशियल मार्केट को और लोकप्रिय अट्रैक्टिव बनाने के लिए दिस थिंग वॉज introduced. Now the interest at that particular point was on original principle. Interest original principle पे मिलेगा, principle was indexed to inflation. ऐसे होता था. इंटरेस्ट आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही मिलेगा, अलबत्ता ओरिजिनल प्रिंसिपल भी बढ़ता रहेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो आप ओवरऑल फ़ायदे में रहेंगे. 2013 आते आते इसको और लुक्रेटिव बनाया गया. द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ वेर इंडेक्स टू इन्फ्लेशन. लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कैविएट क्या रखा, प्रिंसिपल टू एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट टू फिक्स्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच एट दैट पॉइंट वाज 1.5%. तो ये चीज़ की गई. वी विल एंड दिस सेशन हियर एंड वी वुड कंटिन्यू इंशाल्लाह. एंड नेक्स्ट सेशन में हम इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे. इफ़ यू पीपल हैव एनीथिंग टू आस्क, क्वेश्चन, ऐड, तो आप कमेंट्स में मेंशन करें. आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड. अस्सलाम वालेकुम.